ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಂಗೆ. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ನಾನು ಎದೆಗುಂದಿದವನಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹತ್ತಲಾರದ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ತಿಸು. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೆಪ್ಪ ಕರ್ತನೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾತಿಶಯದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸಂದರ್ಶಿಸಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಚಿಂತೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನೀನೇ ದೂರ ಮಾಡು. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಯವನಸ್ಥರಿಗಾಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ ನಡೆಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಸ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯವೇದದ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 65, 1-8 ವಚನಗಳು ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 2ನೇ ವಚನ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಓದುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 65, 2ನೇ ವಚನ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನೇ, ನರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನೇ, ನರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು ಎಂಬುದೇ. हम सभी के लिए परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी सौभाग्यता हमें मिली है. वो सौभाग्यता ये है कि हमारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर है. We have a prayer answering God. हम सभी के लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर है. और इसलिए जो वचन हमने पढ़ा है भजन संहिता 65 उसका दूसरा वचन ये कहता है कि प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, a God who answers our prayers. Really it is true. और ये सच बात है कितनी कि हम परमेश्वर जो है, परमेश्वर से जो भी मांगते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है.
और इसलिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16 वचन ये कहता है कि हम कभी भी इस सिंहासन के पास, प्रभु के सिंहासन के पास अपनी विनतियों को धैर्य से लेकर जा सकते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रश्न ये उठता है, क्या परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है क्या? अगर हम बाइबल के अनुसार देखें, मत्ती उसका 7वां अध्याय 7वां वचन, मत्ती उसका 7वां अध्याय 8वां वचन ये कहता है, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय 13 वचन ये कहता है, हाँ, परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। अगर मैं ये पूछूंगा प्रश्न, क्या सचमुच में हम अपने जीवनों के अंदर इस बात को अनुभव किए हैं? सच्चाई और ईमानदारी से आप कहेंगे, अय्या, हमने तो बहुत सारी प्रार्थनाओं को किए हैं, लेकिन इन सारी प्रार्थनाओं को उत्तर तो नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें उत्तर जो है 4 तरीके से देता है। गॉड आंसर्स इन 4 ways। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर इस तरह से उत्तर देता है। सबसे पहले हाँ में he says yes to our prayers sometimes, many times, बहुत सारे बार he says no भी कहता है, नहीं भी कहता है। तीसरा तरीका जो है परमेश्वर का उत्तर देने का, वेट, यानी कि आप इंतजार करें, सही समय पर परमेश्वर उत्तर देता है। चौथा जो है वो ये होता है, कई बार इट इज अ साइलेंस। वी आर प्रेइंग बट वी आर नॉट गेटिंग आंसर, देयर इज अ साइलेंस। डज इट मीन दैट गॉड डज नॉट आंसर आवर प्रेयर्स? नो, परमेश्वर अपने तरीके से हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। गॉड डज ऑलवेज आंसर आवर प्रेयर्स बट नॉट ऑलवेज एज वी एक्सपेक्ट। हम जैसा चाहते हैं वैसा परमेश्वर उत्तर नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर उत्तर जरूर देता है। सो व्हाट आई वुड वांट टू से इज दैट टुडे आवर प्रेयर्स, बट गॉड आंसर्स इन हिज ओन वे। आवर प्रेयर्स, गॉड आंसर्स इन हिज ओन वे। हमारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार इन प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। सो इसके माध्यम से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? What he wants to teach us that when we are praying and God is answering in a different way, कुछ अलग तरीके से, अलग विषयों के द्वारा उत्तर देता है, तो उससे क्या सिखाना चाहता है? हम 4 ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को लेंगे जिनके द्वारा परमेश्वर उनको उत्तर तो दिया, लेकिन कुछ अलग तरीके से उत्तर देकर उस उत्तर के द्वारा परमेश्वर कुछ बातों को सिखाया है। सो व्हेन वी हैव ए प्रेयर आंसरिंग गॉड, जब हमारा परमेश्वर हमें प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारी इच्छा हमारी तरीके से नहीं, उसकी इच्छा उसके तरीके से देते समय कुछ बातों को हमें सिखाता है। इसलिए इन दिनों में, पूरे लॉकडाउन के दिनों में हमने कई प्रार्थनाएं की है। हमारी प्रार्थनाओं को जो है हाँ में, ना में, इंतजार में या साइलेंस में उत्तर मिला है। क्यों मिला है? आज हम देखेंगे क्यों मिला है। सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं, गॉड changes my life than my needs, than fulfilling my need. God is interested in changing my life than my needs. परमेश्वर मेरे जीवन को बदलना चाहता है, मेरे जीवन को आशीष करना चाहता है, इससे बढ़कर के हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, यहाँ पर सामरी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 4 अध्याय के अंदर। पूरी स्टोरी हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर ये सामरी स्त्री, यीशु मसीह जो बैठा होता है वहाँ पर, वो ये कहते हैं, यीशु मसीह उनसे कहता है कि मुझे पानी दे, लेकिन यीशु मसीह के पास जो है ये कहता है, नहीं, मैं जो तुम्हें पानी दूंगा वो पानी जो है अनंत काल के लिए होगा। तो तब ये स्त्री जो है ये कहती है, ठीक है, मुझे जीवन का पानी दो, जीवन का जल दे दो। लेकिन तब यीशु मसीह तुरंत जो है देता नहीं कहता है, बल्कि ये कहता है, ब्रिंग योर हस्बैंड, तुम अपने पति को लेकर आओ। तब उसका सच्चाई बाहर आता है और उसके बाद में वो जान लेती है कि और कोई नहीं, ये जो है मसीहा है, ये महान मसीहा है, प्रवादी है। ये जो है केवल यहाँ पर इसी तरह से प्यास बुझाने के लिए नहीं पानी के द्वारा, बल्कि जीवन के जल के द्वारा उनके पूरे जीवन को उन्होंने परिवर्तन किया करके देखते हैं। सो गॉड इज इंटरेस्टेड टू चेंज माई लाइफ मोर देन माई नीड्स। मेरी ज़रूरतों को पूरा करने से ज़्यादा परमेश्वर मेरे जीवनों को बदलता है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सारे ज़रूरतों को लेकर, गॉड इज गिव्स आंसर। आंसर तो देता है, क्योंकि वचन ये कहता है
मत्ती उसका 6वें अध्याय 31 से 33 तक कि तुम जो है किसी भी बात की चिंता मत करो, खाने पीने की, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ये करेंगे, उसके बारे में चिंता ना करो, बल्कि परमेश्वर और उनके राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं दी जाएंगी। सारी वस्तुएं दी जाएंगी, लेकिन गॉड इज इंटरेस्टेड इन चेंजिंग योर लाइफ। परमेश्वर आज मेरे और तुम्हारे जीवनों को बदलने के लिए चाहता है। याकूब के जीवन को देखिए, उत्पत्ति उसके 32वें अध्याय 26 और 27वें वचन में हम पाते हैं, जेकब जो है यहाँ पर एक परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ रहा है और ये कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तब पर वो स्वर्गदूत कहता है, तुम कौन हो, तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम? वो कहता है जेकब। तब वो कहता है कि अब से तू जेकब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाएगा। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर का राजकुमार। गॉड changed his life completely. Jacob was asking for only blessings, but God changed his name completely. परमेश्वर उनके द्वारा उनके जीवन को आशीष कर पूर्ण रूप से जो है एक बड़ा योजना उन्होंने बनाया करके हम देखते हैं। सो गॉड आंसर्स आवर प्रेयर। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं को उत्तर देता है, लेकिन हमारी जरूरतों से ज्यादा हमारे जीवन को बदलना चाहता है। ये फर्स्ट हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम जो है देखें, ये देखते हैं, गॉड चेंजेस माई ग्रीड इनटू द जनरॉसिटी। परमेश्वर जो है मेरी लालसाओं को, लालसाओं को हम ये कहेंगे कि हमारे लालच को, हमारे लालसाओं को जो है दयाशील में या फिर दयावंत में परिवर्तन कर, जनरॉसिटी हम जो है देने लगते हैं। लूक उसके 12वें अध्याय में 13 और 14 वचन में एक व्यक्ति आकर कहता है यीशु मसीह से कि मेरे भाई ने मुझसे अन्याय करके मेरे प्रॉपर्टी को ले लिया है, मेरे लैंड को ले लिया है, इसलिए जो है तो उससे कहे कि मुझे सही तरह से हिसाब कर या मेरा न्याय कर करके। जब ये आकर उनसे कहता है तो ये सच्चाई थी कि उनको अन्याय हुआ है, इसलिए वो यीशु मसीह के पास जाकर कहते हैं मुझे न्याय दीजिए। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है पता है, तुम्हारे उन सारे प्रॉपर्टी, उन सारे चीजों से बढ़कर जो है क्या है पता है, वो है तुम इसे लालच मत करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उतने में तुम संतृप्त रहो, बी सैटिस्फाइड वॉट एवर यू हैव। और वो वहां पर कहता है आज मेरे और तुम्हारे जीवनों के अंदर भी बहुत सारे चीजों को लेकर आज हम पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे, हम जो जो चाहते हैं उसे और अधिक रीति से हमारे जीवनों के अंदर दे करके हम कहते हैं। यू नो व्हाट हैपेंस? क्या होता है पता है? यहाँ पर परमेश्वर जो है ये चाहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतृप्त रहकर और दयावंत बनो, दूसरों को दो। इट इज मोर इन गिविंग, ज्यादा आपको देने में संतृप्त है, खुशी है, ना कि उसे रखने के अंदर जो है। अब्राम और लोत की कहानी को हम देखते हैं, जहां पर अब्राम कहता है कि लोत जा, जो तू चुनेगा, अगर तू मेरे राइट हैंड में चुनेगा तो मैं लेफ्ट हैंड में जाऊंगा, अगर तू मेरे लेफ्ट हैंड में चुनेगा तो मैं राइट हैंड में जाऊंगा। मतलब तू जहां पर जाना चाहते वहां पर तू चुन ले और दे दे। और उसने दयावंत होकर उन्होंने दिया। हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हुआ। लूत ने जो है एक ऐसा जगह चुना, बहुत हरा भरा दिख रहा था, लेकिन बाद में वही सोदम गोमोरा शहर बनकर वहां पर दुष्टता आई। लेकिन अब्राम जहां पर था वहां पर परमेश्वर ने उसे सफलता देते गया। यानी कि दयावंत होकर उसने छोड़ दिया, then he became more rich. So God was teaching them a lesson. यहाँ पर परमेश्वर एक नया लेसन हम लोगों को सिखाना चाहता है। ये है, it is more good to give than to receive. परमेश्वर ये बात को हमें सिखाना चाहता है। तीसरा अगर हम देखते हैं वो ये है, God changes my thorns into thrones. परमेश्वर मेरे कांटों को जो है ताज में परिवर्तन करता है। ताज के अंदर या फिर सिंहासन में परिवर्तन करता है। God changes my thorns into the thrones. अगर इस बारे में हम देखेंगे, थॉर्न के बारे में हम सुनते हैं या कांटे के बारे में जब भी हम सुनते हैं हमें पौलुस याद आता है। पौलुस जो है 1 कोरिन्थियों के 12वें अध्याय के अंदर ये बात कहता है कि उसने गिड़गिड़ाकर 3 बार गिड़गिड़ाकर यीशु मसीह से मांगा या परमेश्वर से मांगा कि मुझे कांटा निकाल दे।
What was his problem? We do not know. क्या उनकी समस्या थी हम नहीं जानते हैं. हो सकता है बीमारी, हो सकता है कमजोरी, या फिर हो सकता है कि कुछ चीजों से वो जूझ रहे थे जिसको निकालना चाहते हैं. But he's telling, he pleaded. Word of God says he pleaded. उसने plead किया. But still God allowed those things to happen. परमेश्वर ने उसे रखा. क्यों पता है? वहां पर भी उनको 2 लेसन सिखाना चाहता था. सबसे पहला लेसन ये था, he wants him to be humble. उनको हमेशा ये चाहता था कि वो नम्र और दीन बनकर रहे. दूसरा ये चाहता था कि परमेश्वर जो है उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो. He put the thorn in his life so that God would be glorified. परमेश्वर की महिमा हो. कैसे? क्योंकि जब वो निर्बल था तो तब परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हुआ करते थे. So this is very important thing. आज परमेश्वर हमारे जीवनों में हम कुछ बातों को लेकर प्रार्थना करते जा रहे हैं कि परमेश्वर ये कांटा, ये समस्या, ये जो चीज है मेरे जीवन में तो इसे निकाल दे पिता. लेकिन आज प्लीड करते समय परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? आई हैव केप्ट इट दैट इन योर लाइफ. मैंने उसे तुम्हारे जीवन में रखा है. क्यों? तुम नम्र बनकर रहो. दूसरा, उसके द्वारा तुम जब कमजोर होगे तब मैं अपनी सामर्थ्य जो है तुम्हारे अंदर प्रकट करूंगा. उसके द्वारा मेरी महिमा होगी. So God is answering. God has answered his prayer. परमेश्वर उनको बाद में कहा कि मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है. सो प्रिय लोगों, आज के दिन जो है हम सभी लोग अपने जीवनों के अंदर कुछ न कुछ चीजों को लेकर अटके हुए हैं. हो सकता है कि हमारे परिवार के जीवन में फाइनेंस को लेकर है, कर्जा को लेकर है, या फिर हो सकता है कि और कुछ समस्याएं हैं जिससे हम जूझ रहे हैं. हो सकता है कि हमारे जीवन, हमारे परिवार में जो है पति पत्नी के बीच में जो है हमें बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं हो रहे हैं. तो ऐसे लोग जो है प्रार्थना तो कर रहे हैं कई साल से, नहीं हो रहा है. उसके लिए भी एक अलग उत्तर है. परमेश्वर जिस तरह से एस्तेर के जीवन में मोर्देकाई को अंकल के रूप में, पिता के रूप में भेजा, ठीक उसी तरह से आज मेरे और तुम्हारे लिए क्या है पता है? He wants us to adopt children. हो सकता है कि हमें गोद लेने के द्वारा, बच्चों को गोद लेने के द्वारा एक नई दिशा को दिखाना चाहता है. So I do not know how God is going to answer your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को किस तरह से उत्तर देना है. इस तरह से भी आप जरा सोचिए कि adopting a child becomes an answer from God. परमेश्वर की ओर से जो है मेरे प्रार्थनाओं के लिए उत्तर मिल जाता है. So प्रियो, ये तीसरी बात है जहाँ पर प्रार्थना किया लेकिन परमेश्वर ने उनको कांटा ना निकालते हुए उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने महिमा को पाई. फाइनली चौथी जो बात है वो ये देखते हैं कि यीशु मसीह और उनके शिष्यों के साथ एक पर्वत के ऊपर जाकर, जहाँ पर उनका रूपांतर होता है, पैर से, सर से लेकर पैर तक उनका रूपांतर होता है. हम सब जानते हैं कि पतरस, यूहन्ना और याकूब उनके साथ में होते हैं और यीशु मसीह वहाँ पर रूपांतर होने के बाद ये तीनों लोग जो है देखते हैं कि यीशु मसीह मूसा से और एलिया से दोनों एक आसपास खड़े हैं, उनसे बातें कर रहा है. ये तीनों को देख करके जो है यहाँ पर पतरस कहता है हम यहीं पे रहेंगे और यहीं पर हम अपने तंबू को बांधेंगे, एलिया के लिए, यीशु मसीह के लिए और मूसा के लिए, और हम यहीं पर रहकर अपने जीवन को बिताएंगे. रिलीजियस एक्साइटमेंट, द स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट हो गया उनको. वहां पर स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट में उन्होंने कहा, पतरस ने कहा कि हम यहीं पर रहेंगे बस. बट यू नो व्हाट, वो रिक्वेस्ट किया जब ये कहा कि हम यहीं पर रहना चाहते हैं, यीशु मसीह उनसे एक कहता है पतरस हमें यहाँ पर रहना नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टे हियर, बल्कि हमें और नीचे जाना है. लोग हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही वो नीचे गए हम देखते हैं कि एक लड़का, एक जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, उसके दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह और उनके शिष्य ने उनको निकाला करके देखते हैं. सो टुडे गॉड, समटाइम्स वी आर आस्किंग गॉड, परमेश्वर को हम रिट्रीट्स में, रिवाइवल मीटिंग्स में, यहाँ वहाँ प्रार्थनाओं के अंदर जब हम बहुत ही जोशीले हो जाते हैं और उस उपस्थिति में, उस प्रसन्नता में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, हम कहते हैं कि लॉर्ड हमें इसी जगह पर रहने दे. बट गॉड सेज नो, इट इज नॉट फॉर यू. यहाँ पर रहना नहीं है स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट में, लेकिन इसके आगे और तुमको काम करना है. गॉड इज आंसरिंग हिज प्रेयर बट ही सेज नॉट हियर, बट यू हैव टू गो वेयर द पीपल आर. जहाँ पर लोग हैं वहां पर तुम्हें जाना है. सो टुडे गॉड इज आंसरिंग आवर प्रेयर्स बट इन अ डिफरेंट वे. परमेश्वर आज हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है, उत्तर दे रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, और उसके द्वारा हमें सीखों को सिखाना चाहता है.
टुडे आज हम सभी लोग जो है अपने जीवन को टटोलेंगे और ये कहेंगे कि लॉर्ड, हमारी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख में लाते समय आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर आंसर फॉर माई प्रेयर? लॉर्ड, यू हेल्प मी टू नो। परमेश्वर मुझे मदद कर ताकि मैं इसे जानूं। आइए हम सभी लोग अपने आंखें बंद करते हुए अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें और वो क्या कहना चाहते हैं उसे हम अपनाएंगे। लॉर्ड, आई थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने इस वचन के द्वारा हमसे ये बताई है कि हम किस तरह से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में हमारी प्रार्थनाओं को, विनंतियों को रखने के बाद आप किस तरह से उत्तर देते हैं और आपके उत्तर को हम स्वीकार करना चाहते हैं पिता। आप जैसे देना चाहते हैं वैसे ही हम देंगे प्रभु। आप हमें मदद करें आपके उत्तरों को स्वीकार करने के लिए और उन बातों के द्वारा हमें सिखाइए पिता, केवल आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। अनाउंसमेंट सभी के लिए, हमारी संडे की सभा जो है इसी तरह से 11 बजे संडे के दिन चलाई जाएगी। बुधवार की आराधना 8 बजे फेसबुक लाइव के द्वारा और MYFTCF जो है संडे शाम को 6 बजे जूम पर चलाई जाएगी। और जिनको भी प्रार्थना की आवश्यकता है कृपया मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रेयर के लिए। और इतना ही नहीं बल्कि और कोई स्पेशल प्रेयर्स रखने हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परमेश्वर जो है इस कोरोना की भाड़ को, तीसरी लहर को रोके और आगे हमारी लॉकडाउन जल्द से खुल जाए, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है कृपया आप सभी लोग वैक्सीन लीजिए और कृपया अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों को KPCA स्कॉलरशिप फॉर्म मैंने जो भेजा था आप लोगों को मिला, आपने भरकर भेजा है। काफ़ी लोगों को जो KPCA ने मदद किया है, इन सारे मदद के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और KPCA को भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे सारे बच्चों को कंसिडर करते हुए उनको स्कॉलरशिप दिए हैं। जिनको भी स्कॉलरशिप KPCA के द्वारा मिला है कृपया आप एक छोटा सा वीडियो, 30 सेकंड का वीडियो अपने बच्चों के द्वारा, हाँ हमने स्कॉलरशिप मिला है, थैंक यू KPCA कहकर आप उनको KPCA को धन्यवाद की एक छोटा वीडियो बनाकर आप भेज सकते हैं। मुझे भेजिए या फिर बेनी सर को आप भेज सकते हैं। ये सारा कंपाइल करते हुए हम उनको भेजना चाहते हैं एज ए थैंक्स या फिर ग्रैटिट्यूड उनको दिखाने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे और अपने बेटों को परमेश्वर के लिए और आलय में अर्पण करते जाए। गॉड ब्लेस, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ನೀಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಹೇ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. Praise the Lord. God bless you all. Thank you. Amen. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord.
wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Once I was blind, I could not see the glory of Jesus, so rich and free. I've heard about him, the man of Galilee. I cried out, Lord, oh help me please. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountains, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. He took my hands, I held up high, and he saw the tears that I have cried. Oh, he came down and held me tight, and he said, my child, you are mine. I went down on my knees, and I asked the Lord, have mercy please. He had compassion, he showed me love. Now I praise the Lord above. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountains, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord, but it was on my knees. I found